Morning once again. So, let's start with the topic lands, resources, and development, or development and resources, or resources and development. And let's continue with the same topic again. So, what are we going to study today, and what did we study yesterday? We studied about the various terms as in the resources, the resource planning, and how, by the way, this resource mapping should be done, and the utilization. Today we are going to break it into these particular three sections, that is land, of course, and then we are going to talk about the word water. But right now what we'll be focusing in today's lecture will only be on land, okay? Now, so when and first of all, why should land be considered as a resource? Because this is where we grow the plants, right? This is where we live. This is where we do agriculture. This is where we build railways. This is where we build a lot of buildings, libraries, hospitals, schools, and each and everything. So of course, land is a resource. Otherwise, where are you think, or where do you think you are going to walk, right? So land is a very nice resource, and इसका ये जो यूटिलाइजेशन है वो भी इंडिया के अंदर अलग अलग है. जैसे मैंने आपको कल बताया था दैट इंडिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, और इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा डेमोग्राफिक डिफरेंसेस हैं. मतलब इंडिया एक कम्प्लीटली प्लेन कंट्री नहीं है, या पूरी की पूरी जगह पर प्लेट्यू नहीं है, या केवल माउंटेन्स नहीं है, बट इंडिया के अंदर काइंड ऑफ मिक्सचर है. यदि आप बाकी सारे के सारे कंट्रीज देखोगे, यू विल नॉट फाइंड सच अ काइंड ऑफ डाइवर्सिटी जो इंडिया के अंदर डेमोग्राफिक लोकेशन में है. think about by the way all the Middle Eastern countries. से आप यूएई की बात करो, आप दुबई की बात करो, आप उनके सारे के सारे पूरे उस तरफ के एरिया की बात करो. You talk about Iran and all these places. You will not find huge amount of Himalayan ranges right over there. You will not find, somewhere might find sea, somewhere you might not find sea, somewhere you might find desert. Of course you'll find a lot of deserts over there, but somewhere you won't. यदि आप इंडिया में देखोगे, you will find everything. Deserts are there, mountains are there, agricultural land is there. There is fallow land, which we are going to read the concept today. There are going to be grazing lands. There are perennial rivers all across. हर चीज़ है यहाँ पर, everything. इनफैक्ट सॉइल का भी जो कॉम्पोजिशन है वो कंटिन्यूसली यहाँ पर चेंज होते जाता है. इफ़ यू सी द सॉइल विच इज़ अवेलेबल ओवर देयर एट द नॉर्दर्न सेक्टर ऑफ इंडिया, से जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश एंड उत्तरांचल एंड ऑल ऑफ दिस, you will find different kind of soil. If you go towards the eastern section, say Mizoram, Meghalaya, Arunachal Pradesh, and all of those, you will find a different kind of soil altogether. If you will come to the western section like Maharashtra, Goa, Karnataka, and all of those kind of part of Karnataka, you will see different section. If you go to the southern part, say the Tamil Nadu and Andhra Pradesh and all these particular sections, you will find different soil and soil composition. That means within a country, you have got different kind of demography, you have also got different kind of soils, you have also got different climatic variation changes. So ऐसा तो और कहीं पर होता ही नहीं है, या बहुत बहुत कम जगह पर है. Now let's talk about the land resources in India. First there is going to be, यदि आप पाई चार्ट देखोगे जो कि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर है, okay, I think on page number 4 or page number 5, if you're going to see this, 43% is plains. Plains are those areas जहाँ पे आपके इंडस्ट्रीज लगते हैं एंड जहाँ पर आप नॉर्मल अपना एग्रीकल्चर करते हो. सो ऑल ऑफ दोज पार्ट विल बी नोन एज प्लेन्स. ओके, प्लेन्स. देन कम्स 27% इज द प्लेट्यूज, जहाँ पर आपको फॉरेस्ट मिलते हैं, मिनरल रिजर्व्स वगैरह की आप बात करते हो. ओके, ये सारे के सारे जो भी आपके रिजर्व्स होते हैं, माइनिंग जहाँ पे आप करते हो, दोज विल बी नोन एज द प्लेट्यूज. 30% माउंटेन्स. नाउ माउंटेन्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडिया के अंदर, जो लोगों को आमतौर पे समझ में ही नहीं आता. आप बोलोगे अब सर आप फिर से आ जाओगे बुराई करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं. इनफैक्ट मैं तो कभी बुराई करता ही नहीं. इफ़ यू सी दिस, माउंटेन्स आर नॉट ओनली नेसेसरी फॉर द पार्ट ऑफ दैट, कि वो एक डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं. लोगों को लगता है बेकार के खड़े हुए हैं, लेट्स ब्लास्ट देम, इस जगह पर हम एक अच्छी साइट बनाएंगे एंड लेट्स मेक बिल्डिंग्स. Mountains are very very important for bringing rainfall. They are very important for the part of retreating of monsoon. So monsoon वाले part के लिए mountains बहुत ज़रूरी हैं. Another part, proper wind, आना जाना, उन सब के लिए mountains बहुत ज़रूरी है. And then the most important reason is the perennial rivers. So they'll ensure that the rivers will carry or
will go throughout the year, क्योंकि यदि माउंटेन होगा तो ऊपर पानी इकट्ठा होता जाएगा, नीचे धीरे धीरे पानी आना चालू हो जाएगा फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम द हायर लेवल टू द लोअर लेवल। सो हर एक चीज का अपने यहाँ पर एक बहुत ही डिफरेंट इंपॉर्टेंस है जो बाकी कंट्रीज में शायद ना भी हो, बट अपने यहाँ बहुत है। एंड इसीलिए आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, एंड दिस इज द ओनली रीजन व्हाई इंडिया इज आल्सो नोन एज एन एग्रीकल्चरल कंट्री और एन एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी काइंड ऑफ, because we have got such a huge amount of diversity over here. Now let's talk about the land utilization. लैंड की हम लोगों ने मैपिंग तो कर ली, हम लोगों ने ये तो बता दिया कि कौन सा वाला कितनी कितनी जगह पर है। अब देखते हैं आखिर लैंड यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, कितना लैंड कौन यूटिलाइज कर रहा है। फर्स्ट इज फॉरेस्ट। इफ यू टॉक अबाउट द वर्ड फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट के अंदर आप देखोगे कि बहुत सारे घने जंगल हैं यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पर एवरग्रीन भी है, यहाँ पर डेसिडुअस काइंड ऑफ फॉरेस्ट भी है, श्रब्स भी हैं, हर्ब्स भी हैं। हिमालयन रेंजेस में आपको बहुत सारे आयुर्वेदिक काइंड ऑफ वैसे भी आपको चीज़ें मिलेंगी एंड ऑल दिस एंड ऑल दैट। सो देयर आर वेरियस फॉरेस्ट ओवर हियर। सेकंड इज the land not available for cultivation. When I'm talking about land not available for cultivation, so what do I mean by land not available? Land तो है बट कल्टिवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, वहां पर आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? हम तो करेंगे। सी इस पार्ट नीचे उसके सब पॉइंट्स देके रखे हैं। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज बैरन एंड वेस्ट लैंड। वो जमीनी बंजर है कंप्लीटली, इट्स बैरन, वहां पर कोई भी चीज उग नहीं सकती क्योंकि पूरा रॉकी सॉइल है, या वहां पर या रॉक्स हैं बहुत सारे, या वहां पर नीचे की तरफ में जो सॉइल है उसमें ह्यूमस कंटेंट बहुत कम है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऑल्सो इट कैन बी वेस्ट लैंड। सो बैरन लैंड मतलब इट्स इनफर्टाइल लैंड, वेस्ट लैंड है, वहां पर कभी किसी ने कुछ उगाया ही नहीं है। देन कम्स लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, नॉन एग्रीकल्चरल यूज के लिए लैंड को कौन यूज करेगा? थिंक अबाउट इट। हम लोग खुद, आप जिस घर में रह रहे हो, जिस बिल्डिंग में रह रहे हो, उसके नीचे जो जमीन है वहां पर तो आपने खेती बाड़ी तो करी नहीं है, दैट मीन्स प्लांट्स। If you see in the olden times, I'm talking about the mythological times or very olden times, people used to have or never used to have these concrete, buildings, concrete bungalows, concrete flats, ये नहीं होते थे, huts होते थे, मिट्टी के बने हुए होते थे, and that's the reason why water used to percolate down this particular level. पूरा का पूरा एक साइकिल था, बट नाउ सिंस यू आर कंक्रीटिंग ईच एंड एवरीथिंग, सो ऑफ कोर्स चीजें डे बाय डे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। नाउ लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज के अंदर ऑफ कोर्स जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं वो भी आप जिस जगह पर डालते हो उस जगह पर आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हो। जिस जगह पर आपने बिल्डिंग्स बनाए आप उस जगह पे नहीं कर सकते हो, जिस जगह ब्रिजेस बनाए हुए हैं लैंड के ऊपर में उस जगह नहीं कर सकते हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ pardon me, the light went out, so it's completely fine. Hopefully you should be able to see this. So let's complete this. The other uncultivated land. Now when I'm talking about the word the other uncultivated land, so what exactly do I mean by the term other uncultivated land? When I'm using the word other uncultivated land, that means land तो वहां पर भी है बट उनके reasons इनसे कुछ different है। Okay. फॉर एग्जाम्पल देयर परमानेंट पास्चर्स और ग्रेजिंग लैंड, वहाँ पर बस केवल घास वास उग जाती है, छोटे मोटे पौधे उग जाते हैं, तो वहाँ पर जो भी है जो हर्ड्स ऑफ कैटल होता है, लाइक आपके पास में शीप्स हैं एंड गोट्स हैं ऑल दिस एंड ऑल दैट, ये उनके लिए पास्चर एरिया बने हुए हैं, तो अब वहाँ पर वो लोग जाकर के उनका वो खाना खाते रहते हैं, तो उस जगह पर नॉर्मली एग्रीकल्चर कोई नहीं करता। देन कम्स लैंड अंडर मिसलेनियस और ट्री क्रॉप्स। कई लैंड ऐसे भी होते हैं जहाँ पर आप बड़े बड़े ट्रीज उगे हुए हैं, तो उस जगह पर ऑफकोर्स एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल जिस जगह पर बैनियन ट्री होगा या पीपल का ट्री होगा या टमेरिन का होगा या किसी भी चीज़ का होगा, उस जगह पर ये पेड़ छोटे मोटे नहीं होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, तो उस जगह के आजू बाजू का लैंड आप एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं करोगे। देन लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर ग्रेटर देन व्हाट 5 years। नाउ दे आर सेइंग अदर मिसलेनियस के अंदर ऐसे लैंड्स भी आप कल्टीवेट नहीं करते हो जिनको आज के पहले कभी किसी ने कल्टीवेट ही नहीं किया है। सो दोज आर ग्रेटर देन 5 years जिनको आपने कल्टीवेट नहीं किया है, दोज आल्सो कम इन द सेम कैटेगरी। सो इन वाले कैटेगरी को आप नॉर्मली नेट सोन एरिया के अंदर कैलकुलेट नहीं करते हो। व्हाट डू यू मीन बाय नेट सोन एरिया? NSA, दैट मीन्स द टोटल लैंड जो कि अंडर कल्टिवेशन है, ओके, जहाँ पे आपने कुछ क्रॉप्स उगाए हुए हैं। Let's talk about the next term which is known as fallow lands. What do you mean by the words fallow lands? That is FALLOW.
Fallow lands means again those particular lands which are not being utilized properly the way it should be. So current fallow, left without cultivation for less than 1 year. ऐसे fallow lands या ऐसे areas जो कि आपने एक साल के अंदर अंदर उनके अंदर कुछ उगाया ही नहीं है, you have just left it like this. So those will be coming in the category of current fallow. Okay. Light has come. Guys, pardon me for this, but can't help it out. Now, current fallow, so left without cultivation for less than 1 year. Then comes the word other than current fallow. ये भी तो हो सकता है कि लैंड 1 to 5 years के बीच में किसी ने कल्टिवेट नहीं किया बट उसके पहले किया था. ग्रेटर देन 5 years वाली कैटेगरी में तो वो नीचे आ ही जाएगा अदर अनकल्टिवेटेड लैंड के अंदर. बट फैलो लैंड्स में कौन सा हो जाएगा? जो 1 से 5 साल के बीच में आपने उस जगह कल्टिवेशन किया था एंड अब नहीं किया. सो दोज विल बी कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ दिस वन. नेक्स्ट पर आता है, व्हाट डू यू मीन बाय नाउ दिस की ये आखिर ये निकालता कौन है? ऐसे गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं तो जगह जगह पर जाकर के मैपिंग करते हैं, एक पर्टिकुलर जगह का एरिया लेते हैं, ओके इस जगह पर लैंड है, इस जगह पे इसने ये किया है, इस जगह पे ये किया है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. टोटल जियोग्राफिकल एरिया, व्हाट इज द टोटल जियोग्राफिकल एरिया व्हिच इज अवेलेबल इन इंडिया? दैट इज अराउंड 3.28 million square kilometer. What do you mean by million? Million is around 10 lakhs. So you have got around almost 3.28 million, which is around 30.28 lakhs means squares kilometer. So it's a huge land available with us. Then comes, but the land data which is available with us is not actually 100%. It's only around 93%. Why it is 93%? Where is the 7% gone? The eastern states, the eastern brotherly and sisterly states of ours, वहाँ से अभी तक डेटा कंपाइलेशन पूरा का पूरा हुआ नहीं है. सो इसलिए आपके बुक्स के अंदर अभी तक उसका डेटा प्रॉपर्ली ऐड नहीं हुआ है. नाउ जिस भी दिन वो आ जाएगा ऑफ कोर्स गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के हिसाब से, देन यू विल बी एबल टू से 100%. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ द वर्ड नेट सोन एरिया, व्हिच मींस द टोटल अमाउंट ऑफ sowing which has been done in the available area, that is known as net sown area. नेट जोन एरिया के अंदर से यदि आप देखोगे तो 54% ऑफ टोटल रिपोर्टिंग एरिया नेट जोन एरिया के अंदर दे आर सेइंग ये जो नेट जोन एरिया है ये अभी तक टोटल 54% है ऑफ द टोटल रिपोर्टिंग एरिया. मतलब इस पर्टिकुलर एरिया का टोटल कितना है? मतलब जो भी आपका जो सोइंग वाला जो एरिया है उसका 54% एरिया ही टोटल नेट जोन एरिया में आता है. अब ऐसा नहीं है इंडिया के अंदर कि जहाँ जहाँ पर एग्रीकल्चर है तो हर जगह पर एग्रीकल्चर बड़ा इजीली एंड सब लोग मतलब वहाँ पर प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं उस लैंड को फॉर द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर. फॉर एग्जाम्पल देर आर डिफरेंट स्टेट्स. नाउ लेट्स से द एग्जाम्पल ऑफ पंजाब एंड लेट्स टॉक अबाउट अरुणाचल प्रदेश. नाउ बोथ आर आवर ओन स्टेट्स एज एन इंडियन स्टेट्स. यदि आप पंजाब में देखो तो वहाँ पर एग्रीकल्चर पूरा भर के आता है. साल के अंदर 3 से 4 बार वो लोग सोइंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं. दे हैव गॉट मॉडर्न इक्विपमेंट्स, दे हैव गॉट थ्रेशर्स, दे हैव गॉट ट्रैक्टर्स, दे यूज फर्टिलाइजर्स, दे यूज मैन्योर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा इज अंडर सोन. वो लोग इसको सो करते हैं. दैट्स द रीजन व्हाई दे आर प्रीटी रिच एरियाज. यदि आप कई पंजाब के एरियाज में जाकर के देखोगे यू विल फाइंड वेरी लग्जरी कार्स स्टैंडिंग नियर द फील्ड लैंड्स. ओके. ऑन द अदर हैंड इफ यू कैन सी लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश एंड इन मणिपुर एंड अंडमान एंड निकोबार. 10% से भी कम जगह पर लोगों ने आखिर क्या करी हुई है? फार्मिंग करी हुई है. मतलब वो नेट जोन एरिया के अंदर है ही नहीं. वाई? बिकॉज वहाँ पर उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं हुआ है. So if you can understand ईस्टर्न साइड जो हमारा पूरा का पूरा है इंडिया का, that's not entirely developed, we would say. I'm not talking about the people. We have got lovely people, right over there. But the problem is that infrastructure facilities अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने उस जगह पर उतने अच्छे ढंग से नहीं करे हैं. And that's the reason why वो so called जो 7 states वाला अपना जो पार्ट है वो मेन स्ट्रीम से थोड़ा थोड़ा पीछे होते जा रहा है. So that's the reason why आजकल आपने सुना होगा एक पॉलिसी चली है which is known as Go East policy. मोदी जी ने बताया था. So the Honorable Prime Minister actually led this policy which is Go East. Think about it. Why would the Prime Minister say about going east? Because western, central, northern and the southern part of India
टेक्निकली आर बीइंग completely developed हो रहे हैं, ट्रेन्स ज्वाइन हो रही हैं, सब कुछ, but the eastern part is still lagging behind, and that's the reason why his main focus is on towards the east. So this is for the part of today. Tomorrow once again we are going to continue with the part of water resources and also some of the part of the land resources and the land conservation, and hopefully tomorrow we are going to wrap up this particular topic. Science, of course, would take around 2 and 3 more days because it's a huge, gigantic topic, so it will take some time. So, okay, guys, enjoy. Thank you so much. Once again, the same introduction. My name is Gautam Jain, and I am a teacher who is teaching God knows what, as in currently social science. So, if you do like the video, guys, please do share, comment, like, subscribe, whatever. That's what every, I think, YouTuber say. No, I'm not a YouTuber. I'm just a temporary YouTuber. Thank you guys so much. Enjoy. Bye-bye.